अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप सो मेरी आवाज़ आप सबको आ रही होगी। If you all can hear me, just write the message so that we can proceed forward. जी अरसलान, कुछ लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, बस मेरे जी ख्याल सर, बस स्टार्ट में कर। 1-2 मिनट। जी सर, I have shared a scenario. ये होप सो सबकी स्क्रीन पे विजिबल होगा. We will discuss today's topic, the eye surgery and its anesthesia concerns under all these questions जो मैंने सिनेरियो में शेयर किए हैं. I will like कि आप सब लोग पार्टिसिपेट करें, अदरवाइज we will discuss एंड जो सीनियर लोग हैं काइंडली अगर वो अपना इनपुट देना चाहें इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन तो ये हेल्पफुल होगा तमाम जूनियर्स के लिए. सो वी विल स्टार्ट इन 5 मिनट्स. तब तक आप सब लोग ये सिनेरियो रीड कर लें और इनके आंसर्स चाहे जिस मर्जी बुक से देख लें, अपने पास नोट डाउन कर लें बेशक. तो वी विल डिस्कस टुडेज टॉपिक अंडर दीज हेडिंग्स.
So we are going to start this scenario. So this scenario is basically an eye injury with a full stomach. जो रूटीन में मोस्टली लॉन्ग केसेस में या टेबल वगैरह में मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है जिस पर एग्जामिनर आपको बहुत क्वेश्चंस इसमें मजीद भी किए जा सकते हैं इसके अलावा भी तो आई हैव ट्राइड कि हम पूरा टॉपिक इन तमाम क्वेश्चंस के अंदर ही कवर कर लें एंड दोज हु आर गोइंग फॉर वाइवा उनके सर एक सॉरी रिक्वेस्ट है सर, काइंडली इसकी जी जी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं इसको सर? जी जी रिकॉर्डिंग हो रही है ये आपके साथ शेयर हो जाएगी रिकॉर्डिंग जी सर, आई ट्राइड अलॉट, मुझसे नहीं हो सका तो काइंडली कुछ जगहों पे सर नेट काम नहीं करता तो फिर बाद में ओके ये ओके बहुत सर ओके ओके इंफॉर्मेटिव हो। थैंक यू सो ओके मच, ओके थैंक यू। तो ये रिकॉर्डिंग हो रही है और इंशाल्लाह ये शेयर होगी आपके साथ सो इट इज एन ओपन डिस्कशन आप लोग चाहें तो अपना इनपुट हर क्वेश्चन के बाद दे सकते हैं otherwise I will try to explain all these questions and so scenario is a 28-year-old man otherwise healthy is presented to the emergency room with a fish hook embedded in his eye. He ate a full meal just before the fishing accident. So first question is what are the determinants of intraocular pressure under normal circumstances? What is the normal range of intraocular pressure? And what was expected intraocular pressure in this injured eye? इससे मजीद क्वेश्चन ये भी सकते हैं कि what are the factors which affect the intraocular pressure इसमें कार्डियक और रेस्पिरेटरी वेरिएबल्स आ जाते हैं मुख्तलिफ किस्म के so we will try to discuss this anybody जो इसको थोड़ा सा आंसर करना चाहे so intraocular pressure is basically determined by the balance between the production and drainage of aqueous humor. अब aqueous humor की जो प्रोडक्शन है इसका टोटल वॉल्यूम इज अबाउट 0.3 ml और इसकी जो प्रोडक्शन है इट इज अबाउट 2 माइक्रोलीटर पर मिनट और aqueous humor एक्चुअली प्रोड्यूस्ड कहाँ से होता है फिर सर्कुलेट होकर टेयर चैम्बर में आएगा सो एनीबॉडी जो इसको आंसर कर सके So aqueous humor is basically produced by the secretory process from the ciliary body in the posterior chamber. Then it circulates to the anterior chamber, जहाँ से it is reabsorbed back into the cavernous sinus or jugular venous sinus to the canal of Schlemm जिसको हम कहते हैं. तो इसकी production usually 2 microliter per minute होती है. So it is the basically the pressure intraocular pressure it is determined by the balance between the production and drainage of aqueous humor. और अगर अब इसकी रेजिस्टेंस आएगी आउटफ्लो में तो इसका प्रेशर बढ़ जाएगा. Normal जो pressure it is usually 12 to 20 millimeter of mercury. Glaucoma में क्या होता है? It is caused by the obstruction to the aqueous humor outflow. It is called the glaucoma. So various factors हैं जो intraocular pressure को increase करते हैं decrease करते हैं. CVP it will when CVP is increased it will increase the intraocular pressure. Respectively when it will decrease the intraocular pressure. PCO2 when it is increased it increases the intraocular pressure and it will decrease the intraocular pressure. So when the globe is open, जो इस scenario में है, the intraocular pressure is lowered and may be as low as the atmospheric pressure. तो कंसर्न इसमें ये है कि relative volume of choroid और vitreous tumor जो है ना उसका हमने important ध्यान रखना है. अगर ये volume if this volume increases when the eye is open, the vitreous tumor may be lost. So any deformation of the eye by external pressure in the globe may cause an increase in intraocular pressure. So anybody जो इसमें मजीद कुछ ऐड करना चाहे? So next question is, are topically applied ophthalmic medications absorbed systemically? How can this absorption be reduced and which eye drops may have effects that are concerned to anesthetist? Routine में जो mostly medications ophthalmic solution में दी जाती हैं उनकी concentration different होती है and they are absorbed systemically. Anybody जो इसको मजीद explain करना चाहे otherwise I will explain it.
जो आंसर करना चाहे they can raise hand or unmute your mic. So the tropical drugs, they are absorbed through the conjunctiva, or absorption is increased when the eye is instrumented or disease or traumatized, and absorption बढ़ जाती है. These absorbed through the nasolacrimal duct, then it comes to nasal mucosa. Acha, when we put the pressure on the inner canthus of the eye for a few minutes after installation of the drops, तो इसकी absorption को हम occlude कर सकते हैं by actually occluding the nasolacrimal duct. तो मोस्टली जो हम ड्रॉप्स यूज कर रहे होते हैं आई में, इट कैन बी एट्रोपिन, इट कैन बी स्कोपोलामीन, इट कैन बी फिनाइलेफ्रिन, इट कैन बी एपिनेफ्रिन, बीटा ब्लॉकर्स, टिमोलॉल, बेटॉक्सोलॉल, एसिटाइलकोलिन, वैरायटी ऑफ द ड्रग्स है जो हम आई के आई की मेडिकेशन में यूज कर रहे होते हैं. तो दे व्हेन दे आर अब्सॉर्ब्ड सिस्टेमेटिकली, तो उनका रिस्पेक्टिव जो इफेक्ट है इट कैन बी सीन इन द पेशेंट्स. सो एट्रोपिन इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस मिड्रियासिस, साइक्लोप्लीजिया. अब ये आता है 1% सॉल्यूशन में. अब 1% सॉल्यूशन का मतलब है इट हैज 0.2 to 0.5 mg ऑफ एट्रोपिन पर ड्रॉप. तो यूजुअली हम कहते हैं 20 ड्रॉप्स का 1 ml बन जाता है, तो 1% मीन 10 mg per ml. तो इट इज 0.2 to 0.5 milligram of atropine per drop. तो सही बात है, when it is absorbed systemically, you will see the in children and older adults, you will see the tachycardia, flushing, thirst, dry skin, agitation. So this is the effect of atropine. Similarly, phenylephrine पे आ जाएं, it also comes in different concentrations, 2.5%, 5%, 10%. तो the dose of 1 drop per eye है इसका, तो इसमें भी जैसे ही जैसे absorb होता जाएगा according to concentration. मैंने पहले बताया कि जैसे concentration absorb होगी तो it will cause its effect. Phenylephrine can cause palpitation, nervousness, headache, nausea, vomiting, severe hypertension, reflex bradycardia, even subarachnoid hemorrhage can occur. Similarly, topical epinephrine, topical epinephrine will decrease the aqueous secretion and improves the outflow. और इसका जो इफेक्ट है वो 15 मिनट्स तक इट लास्ट यूजुअली 15 मिनट्स. एंड 1 ड्रॉप ऑफ 2% सॉल्यूशन, जिसका यूजुअली 2% सॉल्यूशन आता है एपिनेफ्रिन का, तो 1 ड्रॉप ऑफ 2% सॉल्यूशन कंटेन्स 0.5 to 1 मिलीग्राम ऑफ एपिनेफ्रिन. तो इसकी भी जाहिर बात है जब ये हम देते हैं तो इसके भी सिस्टमिक इफेक्ट्स बाज़ दफा हमें आ रहे होते हैं. सिमिलरली बीटा ब्लॉकर्स हैं, टिमोलॉल, बेटॉक्सोलॉल, तो इनके भी साइड इफेक्ट लाइट हेडेडनेस, फैटीग, डिसओरिएंटेशन, डिप्रेस्ड सीएनएस फंक्शन, even asthma may be exacerbated. So these all drops, they have clinical implication for anesthetist. So हमें पता होना चाहिए कि कोई एक्टिव केस है उसमें पेशेंट ने कोई एट्रोपिन कोई चीज ऐसी ड्रॉप्स डाले हैं, तो सडनली आपने टैकीकार्डिया नोटिस किया है, तो आप इलेक्टिव सर्जरी को एट द स्पॉट यू कैन स्टॉप इट. एनीबॉडी जो इसमें कुछ मजीद ऐड करना चाहे? वी आर स्टिल ऑन क्वेश्चन नंबर 2. हम केस सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली एक ओपन आई इंजरी का विद फुल स्टमक. तो अभी तक हम जस्ट ऑन दी मेडिकेशंस पे हैं कि विच टॉपिकल ऑप्थेल्मिक मेडिकेशन और सिग्निफिकेंट हैव दे हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट टू एनेस्थेटिस्ट. एनीबॉडी जो इसमें कुछ ऐड करना चाहे? जी डॉक्टर तनवीर सर, आप कुछ ऐड करना चाहें इसमें? जी असल में मेरी ना साइमल्टेनियसली एक कॉल आ गई, वो मैं अटेंड कर रहा था. तो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि टॉपिकल ऑफ्थेल्मिक है उनमें बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, वो अब्सॉर्ब होते हैं सिस्टेमिकली, वो ज़ाहिर है ब्रैडीकार्डिया उनका होगा. और फर्दर आई थिंक कुछ ड्रग्स होती हैं लाइक पाइलोकार्पिन ETC, ये भी कुछ सिस्टेमिक इनका इफेक्ट होता है. इज इट राइट सर? जी सर. इसमें मोस्टली हमारे पास एट्रोपिन भी आती है, फिनाइलेफ्रिन भी आ जाती है, उसके ड्रॉप्स भी आते हैं, एपिनेफ्रिन के ड्रॉप्स भी आते हैं. बीटा ब्लॉकर्स आपने बता दिया, टाइमोलॉल, बेटॉक्सोलॉल. Exactly. So basically common feeling is that the ophthalmic जो आंख के कतरे हैं जी, 2 कतरे ही तो आंख में टपका रहे हैं, क्या होता है, उनको हम
स्किप कर देते हैं कि जी शायद उसका कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन ये म्यूकस मेम्ब्रेन है और उससे बड़ी थारो जो है ना सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन हो रही होती है। जी सर, टेक होम एग्जैक्टली इसका मैसेज यही है। एग्जैक्टली और उनकी कंसंट्रेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इवन मैंने अभी बताया 1% सोल्यूशन ऑफ एट्रोपिन, इट हैज 0.2 टू 0.5 मिलीग्राम ऑफ एट्रोपिन पर ड्रॉप। सो आपके एक ड्रॉप के साथ जो आप आईवी दे दें एट्रोपिन, तो उतना इफेक्ट आपका बाज दफा या सिस्टेमिकली इफेक्ट आ रहा होता है। एग्जैक्टली। सो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें सर, ये मैंने जी सिनेरियो सर, पढ़ नेक्स्ट लिया है। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question is pre-op is an open globe injury all. आवाज नहीं आ रही डॉक्टर असलान। Yes sir, is an open globe injury always a surgical emergency? Well, not always. Actually, we have to communicate with the ophthalmic surgeon, and because certain injuries they want to protect the eye, certain injuries in which eye is totally damaged. So it really depends. Um, ho- जी not सर, ठीक कह रहे always, हैं आप। not always a life-saving or organ-saving sort of emergency. It depends. If they want to protect the eye, इंजरी अगर ऐसी है कि वो पार्शल है और इंटरवेंशन से जो विजन है वो बच सकता है और जो सेप्सिस है तो ये इमरजेंसी है। अगर इट डिपेंड्स ऑन सर्जन कि वो उसका एग्जामिनेशन किस तरह से उसे जो है ना रिसीव कर रहा है, डॉक्यूमेंट कर रहा है। इट डिपेंड्स फ्रॉम सिनेरियो टू सिनेरियो। जी सर, एग्जैक्टली आपने ठीक कहा। Mostly we can surgeries can be performed within 12 hours to minimize the possibility of infection and other complications. या So next question is what pre-op evaluation would you require? इसमें मेरा It is ख्याल है basically कोई हाँ किसी और जी, को बोलने दें, फिर आखिर में मैं ऐड कर सर दूंगा। जी सर, हाँ जी, कोई और बोला जी डॉक्टर आफिया। सर सर इसकी प्री ऑप एवेल्यूशन में सबसे पहले तो मेडिकल हिस्ट्री लेंगे और फिजिकल एग्जामिनेशन। इसकी मेडिकल हिस्ट्री में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ओरल इनटेक का टाइम है। वो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स फुल स्टमक होते हैं, तो इसमें उसके अलावा कोमॉर्बिडिटीज वगैरह जो भी तमाम हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद सर इसमें जो है पेशेंट को हमने फर्दर डैमेज से बचाना है, अवॉइड इंक्रीज इन इंट्राओकुलर प्रेशर से। और उसके अलावा सर उसको फुल स्टमक कंसीडर करके पल्मोनरी एस्पिरेशन से बचाने के लिए तो तमाम हम वर्कअप कर सकते हैं, वो करेंगे। और सर जो बाकी कोमॉर्बिडिटीज की हिस्ट्री इम्पोर्टेंट है, इंट्राऑपरेटिव अगर कोई हाइपरटेंशन है या डायबिटीज है, उन सबको भी कंट्रोल करना उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा। एग्जैक्टली तो हमारे पास जो सिनेरियो है इसमें पेशेंट इज 28 ईयर ओल्ड मेल हेल्दी मैन है, तो इसमें मोस्टली अदर कोमॉर्बिडिटीज यहाँ पे रूल आउट हो गई हैं। तो प्री ऑप इवैल्यूएशन में सही कहा आपने कि हमारे पास मेन कंसर्न है वो है फुल स्टमक वाला। अदरवाइज पेशेंट हेल्दी है तो आप रूटीन की इन्वेस्टिगेशन आप नहीं भी करवाते तो इंस्टीट्यूशनल प्रोटोकॉल होते हैं बाज़ दफा आपको करवाने पड़ती हैं। तो वो है, अगर एक्सटेंसिव ट्रॉमा की हिस्ट्री है तो आपने और चीजें रूल आउट करनी है कि स्कल का फ्रैक्चर नहीं है, कोई इंट्राक्रैनियल हेमरेज नहीं है, तो वो चीजें आपने, अगर एक्सटेंसिव इंजरी है तो उसमें आपने रूल आउट करनी है। जी डॉक्टर तनवीर, इसमें सर आप कुछ और ऐड करना चाहें? जी, इसमें थोड़ा-सा मैं ऐड करना चाहूँगा और फर्दर मैं ऐड करूँ इसमें मैं जस्ट फॉर दी मुझे याद है जब हम पाकिस्तान में काम करते थे, मुल्तान में, निश्तर हॉस्पिटल में, तो आई में जो है ना जो ट्रॉमा था आई का, फॉरेन ऑब्जेक्ट ट्रॉमा कॉर्निया का हो गया, तो वो अक्सर क्या होता था कि ये जो वर्कर होते हैं, जो कि ग्राइंडिंग का काम करते हैं और जो स्टील का काम करते हैं, स्टील वगैरह का, तो उनमें ये इंजरी आती थी। इसके बाद दुबई जिस हॉस्पिटल में मैंने काम किया, उसमें भी ना ऑफ्थेल्मिक डिपार्टमेंट था और उसमें एक ना सीरीज ऑफ आई इंजरी जो है ना रिपोर्ट होती थी कि जो कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं, वहाँ जो बिल्डिंग्स बनती हैं, टावर वगैरह, तो उसमें जो स्टील फिक्सर होते थे, ग्राइंडिंग करने वाले जो लोग थे, पाकिस्तानी, इंडियंस और बांग्लादेशी,
अगरचे वहाँ सेफ्टी का ना ख्याल रखा जाता था कि उन्हें हमेशा जो गॉगल्स हैं आई प्रोटेक्शन वो यानी बाय लॉ लाजमी होते थे, लेकिन कुछ वर्कर ना उसको वायलेट कर देते थे, नहीं पहनते थे और उन्हें इंजरी हो जाती थी। तो जो प्री ऑपरेटिव इवैल्यूएशन है वो हमने कंप्लीट प्री ऑपरेटिव इवैल्यूएशन करनी है, जैसे किसी भी पेशेंट में हम करते हैं। ज़ाहिर है इसमें कुछ चीज़ें जो है ना वो एक्स्ट्रा हैं जिसमें हमने एम्फेसिस रखना है। उसमें यही है कि जैसे डॉक्टर राफिया ने बताया कि टाइमिंग ऑफ जो फास्टिंग है, लास्ट इनटेक, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा अगर उस पेशेंट में फॉर एग्जांपल आइसोलेटेड कोई इंजरी नहीं है जिसमें फाइन कोई मेटल इंजरी है आई की, और से हिस्ट्री ऑफ फॉल है उसमें कि जो हाइट से वो बंदा गिरा है, तो उसमें जाहिर है उसमें और इंजरीज भी हो सकती हैं, इंक्लूडिंग हेड इंजरी हो सकती है, उसमें चेस्ट ट्रॉमा हो सकता है, पेल्विक ट्रॉमा हो सकता है, और इस तरह की जो एसोसिएटेड हैं वो ओवरलुक हो सकती हैं। और इसके बाद जो है उसे बेसिकली इस पेशेंट में जैसे आई इंजरी हुई है उसमें बड़ी शदीद किस्म की एप्रीहेंशन होती है, क्योंकि एप्रीहेंशन जो लॉस ऑफ विजन है ये एक बड़ी मेजर चीज़ है ह्यूमन बीइंग के लिए, टू मेक हिम एंग्शियस। तो मैंने ऐसे पेशेंट्स को, अगरचे वो यंग होते हैं लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा एंग्शियस देखा है, और उस एंग्जाइटी की वजह से जो उनका ज़ाहिर है जो टैकीकार्डिया है, स्वेटिंग है, और जो जीआई एम्प्टीइंग डिले है ये होगा, और एसिडिटी ज़्यादा होगी, तो इन्हें प्री मेडिकेट भी करना बनता है बेसिकली, जस्ट लाइक जैसे हम एंटासिड्स वगैरह देते हैं। तो ये हो जाएगा। फर्दर ये है कि इन पेशेंट से हमने कंसेंट लेनी है और इन्हें एक्सप्लेन करना है कि रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन क्या है, उन्हें पूरी तरीके से एक्सप्लेन करना है कि दे विल बी गिवन बिट ऑफ प्रेशर ऑन देयर थ्रोट एंड व्हाई वी आर गिविंग इट एंड व्हाट आर द रिस्क्स। तो इस पूरे सिनेरियो के बारे में पेशेंट को एजुकेट करना है। दैट्स ऑल। हर चीज़ जो है ना ये इसी के इर्द-गिर्द ही घूमती है बेसिकली, रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन एंड इंट्राओकुलर Exactly. प्रेशर को Exactly, sir. ना होने दिया जाए, और उसकी वजह से जो फर्दर आई का जो इंजरी है वो एक्सटेंड ना हो जाए। एग्जैक्टली सर। और हम लोग मोस्टली ना रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन को बहुत इजी लेते हैं और इसकी कंसेंट नहीं लेते पेशेंट से। हमें पेशेंट को एजुकेट करना चाहिए कि रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन क्या है और इसमें हमारे कंसर्न्स क्या है और क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। हम रूटीन में यहाँ पे ये काम नहीं कर रहे होते। करना चाहिए। अरसलान, जी सर। ये जी जहांगीर सर। को भी दो, जान को जी सर। जी सर। हैंड जी रेज सर। करवा। जी डॉक्टर जहांगीर, जहांगीर। वालेकुम। वास्सलाम जी डॉक्टर जहांगीर। मेरा सवाल यही था जो तनवीर साहब ने माशाल्लाह एक्सप्लेन कर दी है उसको, और रिगार्डलेस ऑफ लास्ट इनटेक के कितनी देर पहले पेशेंट ने खाया हुआ है, सपोज पेशेंट अगले दिन कंसीडर करें, उसके पीछे रीजन यही है कि एक इमरजेंसी कंडीशन, जितनी भी इमरजेंसी है उनको हम फुल स्टमक इसीलिए लेते हैं क्योंकि पेशेंट स्ट्रेस में होते हैं, फिजिकल स्ट्रेस भी और मेंटल स्ट्रेस भी होती है। तनवीर साहब ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया माशाल्लाह। ठीक है, हो गए कोई कार्य इंशाल्लाह। Next question is the patient is full stomach. Would you pass NG or administer emetics to this patient? नो सर, एनजी पास करने से पेशेंट की एक तो वो इरिटेबल होगा और उसकी इरिटेबिलिटी से इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज होगा, और दूसरा उसकी एंजाइटी लेवल भी इससे इंक्रीज हो सकता है। तो सर ऐसी हर किस्म की किसी भी चीज को अवॉइड करेंगे जिससे उसके एंजाइटी इंक्रीज होगी, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा, या फिर उसको उसका इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज होगा। उसकी बजाय हम बाकी तमाम मेजर्स कर सकते हैं एसिडिटी डिक्रीज करने के लिए, तो जिसमें सर मेटाक्लोप्रोमाइड दे सकते हैं जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर टोन को इंक्रीज करेगा और गैस्ट्रिक एम्पटाइंग स्पीड्स अप करेगा। और सर उसके अलावा H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी दे सकते हैं, और एंटासिड्स, ओरल एंटासिड्स भी इम्पोर्टेंट समझे जाते हैं, लेकिन उसमें गैस्ट्रिक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है जो
एंटासिड्स अगर हम दें तो इसमें एनजी को अवॉइड करते हैं सर। जी एग्जैक्टली बिल्कुल सही कहा आपने। जी एनीबॉडी एल्स? जी डॉक्टर तनवीर सर आप कुछ इसमें ऐड करना चाहें? बिल्कुल ठीक बताया है डॉक्टर राफिया ने। और एनजी ये है कि इतना कोई हेल्प आउट करेगी नहीं, और फर्दर ये है कि उससे एनजी से पेशेंट जो है कफ करेगा, स्नीज करेगा, इरिटेबल होगा। तो फर्दर जो चीज़ें हम बेसिकली कर रहे हैं, जिस प्रिवेंशन की तरफ हम जा रहे हैं कि वो नुकसान ना हो, तो वो इससे बेनिफिट हासिल नहीं होगा। और इन रूटीन प्रैक्टिस में भी यही देखा गया है कि एनजी जो है ना, मैंने नहीं देखा किसी जगह एनजी जो है ना पास की जा रही हो। जी एग्जैक्टली सर। तो एनजी को हम माइनस कर देते हैं, नो एनजी। अलबत्ता एसिड प्रोफाइलेक्सिस जो है वो हमने करनी है, और एयरवे को थारोली असेस करना है। इफ यू थिंक एयरवे इज ट्रिकी और डिफिकल्ट, तो एनजी की बजाय आप ये है कि फिर अवेक इंटूबेशन की तरफ जा सकते हैं, अगर एयरवे डिफिकल्ट है और फुल स्टमक है पेशेंट तो, लेकिन एनजी नहीं बेनिफिट करेगी। जी सर एग्जैक्टली ठीक कहा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर सम फैक्टर्स दैट मे इंक्रीज द रिस्क ऑफ विट्रस herniation ड्यूरिंग इंडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया? इसमें थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं। कुछ चीजें हैं जो फेस मास्क की वजह से भी हो सकती हैं हमारी। दे कैन प्रेस द आईबॉल, कफिंग, स्ट्रेनिंग, बकिंग, they can also increase the pressure. Extraocular muscle spasm by depolarizing muscle relaxant. It can cause poorly applied required pressure. It can block the venous drainage from the eye. So ये कुछ चीजें हैं। इसके अलावा hypercarbia, hypoxia, they can also increase the pressure. Anybody else जो इसमें कुछ ऐड करना चाहे? मेरा ख्याल है दूसरे लोग कर लें, फिर थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर जी लूंगा। सर। कोई और बंदा, कोई और कुलीग माशाल्लाह करना चाहें? अस्सलाम वालेकुम। तो ये सॉरी मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। ये जी जी। इंट्रा नंबर 1 का आंसर देना है ना? हाँ जी हाँ जी, वन का। अच्छा, इसमें विट्रस herniation को हमने कैसे प्रिवेंट करना है? अपना व्हाट फैक्टर इंक्रीज द रिस्क ऑफ विट्रस herniation ड्यूरिंग इंडक्शन एंड मेंटेनेंस? इसमें हम कर लेते हैं मैकेनिकल फैक्टर्स हैं, पेशेंट की जो पोजीशन है, हेड डाउन पोजीशन हो, वो सारी कंडीशन जिनमें आईसीपी रेज हो। ईटीटी हम टाई करते हैं, उसकी बैंडेज है वो ज्यादा टाइट ना हो, वीनस जो रिटर्न है वो प्रॉपर हो, हेड डाउन पोजीशन सर्जन अपनी फैसिलिटेशन के लिए हेड डाउन पोजीशन करवा देता है। इसी तरह हाइपोवेंटिलेशन है, ये सारी चीजें उसमें होंगी। तो कोई और फैक्टर है तो वो आप ऐड कर दें। मेरे ज़हन में यही फैक्टर थे। जी सर डॉक्टर तनवीर। और फैक्टर आप डॉक्टर इस्लाम बता रहे थे, कफिंग, जी बकिंग, सर। स्ट्रेनिंग और ये चीजें, इसका जो सिनोनिम बनेगा ना, ये सारी चीजें उस वक्त हो रही होंगी जब आपकी जो एनेस्थेटिक डेप्थ है वो एडिक्वेट नहीं है। एग्जैक्टली। सो इन तमाम चीज़ों को काउंटरएक्ट करने के लिए, क्योंकि ये रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन है, इसमें प्री कैलकुलेटेड डोज जो है वो हम एनेस्थेटिक इंडक्शन की दे रहे हैं, तो वो मिस कैलकुलेट ना हो, एंड यू मेक श्योर कि जो आप डोज दे रहे हैं वो एडिक्वेट है, एडिक्वेट डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया जो है प्रोवाइड करेगी, टू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स। इफ डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया इज नॉट एडिक्वेट, द कफिंग, स्ट्रेनिंग, पकिंग, ये तमाम चीज़ें जो है वो होंगी। तो इन तमाम चीज़ों का एक सिंपल आंसर है, adequate depth of anesthesia, to ensure adequate depth of anesthesia right from the beginning. By ensuring it, मेरा ख्याल है हम इस फैक्टर को एटलीस्ट जो है ना वो प्रिवेंट कर सकते हैं। एग्जैक्टली सर। So next question जो है तीन, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, they all are एक ही चीज से इर्द-गिर्द घूम रहा है, that is rapid sequence induction. So question 2 is, will you intubate this patient? Is LMA an option or awake intubation? तो awake intubation, LMA और intubation, इस पे anybody जो कमेंट करना चाहे? सर इस पेशेंट को हम इंटुबेट करेंगे, यस,
बिकॉज एक पेनिट्रेटिंग इंजरी है और इसमें रीजनल एनेस्थीसिया को हम अवॉइड करेंगे, रेट्रोबुलर ब्लॉक वगैरह वो हम अवॉइड करेंगे क्योंकि उससे इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज होता है, एक्सपल्शन हो सकती है जो भी एक इंजर्ड आई और उसका ग्लोब है। तो जीए की तरफ ही जाएंगे, इंटुबेट करेंगे। एलएमए गुड ऑप्शन नहीं है क्योंकि हम पेशेंट को फुल स्टमक कंसीडर कर रहे हैं और उसमें एस्पिरेशन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। और अवेक इंटुबेशन यस, अगर डिफिकल्ट एयरवे है तो हम इसको रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन के साथ अवेक नहीं, रैपिड सीक्वेंस तो नहीं आएगा, फिर अवेक इंटुबेशन की तरफ जा सकते हैं। यस एक चीज और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि इंटुबेशन एक तो हम फुल स्टमक की वजह से करते हैं, और दूसरा जो एलएमए है क्योंकि पेशेंट को ऊपर ड्रैप किया होता है, शीट्स डाली होती हैं, तो एलएमए हमारा आगे पीछे हो सकता है। Sir, what about rock uranium, sir? Rapid sequence with rock uranium. वो नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। वो आगे रैपिड सीक्वेंस के कंप्लीट क्वेश्चंस आ रहे हैं। अभी हम सिर्फ अवेक इंटुबेशन पे थोड़ा और एलएमए का ऑप्शन पे आगे सवाल क्वेश्चंस आगे आ रहे हैं वो वाले। We will discuss that in this. अच्छा, अवेक इंटुबेशन का ये है कि यूजुअली अगर इजी इंटुबेशन लग रही है तो इट शुड बी अवॉइडेड क्योंकि इसमें भी बाज़ वक्त कफिंग एंड बकिंग के चांस होते हैं। तो अगर करनी भी पड़े, पॉसिबली डिफिकल्ट एयरवे है, कंप्रोमाइज्ड एयरवे है, तो उसमें फिर ये है कि अंडर केयरफुल सेडेशन तो उसमें हम ये किया जा सकता है, जो मेरा अपना व्यू है। मजीद सर डॉक्टर तनवीर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें? गुड, थैंक यू। डॉक्टर राफिया ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया और मैं इम्प्रेस हूँ माशाल्लाह डॉक्टर साहबा से। तो डॉक्टर साहब आप ट्रेनी है आप या एग्जाम कर लिया आपने? नहीं सर, ये बड़ी अच्छी ट्रेनिंग है हमारी। सर मैं ट्रेनी हूँ सर। अच्छा चले, माशाल्लाह जी, आपका ब्राइट फ्यूचर मुझे नजर आ रहा है। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। थैंक यू सर, थैंक। अच्छा, विल यू इंटुबेट द पेशेंट? यस ऑफ कोर्स, ठीक है। और एलएमए इज एन ऑप्शन। well, if you are taking exam and then the answer is no, but if you are an experienced person and the patient is fasting and you have pre-medicated and the acid aspiration prophylaxis has been taken and you think, well, I can manage an LMA, सिर्फ उस सूरत में, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक इसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, जिस तरह हम बड़े एक्सपीरियंस्ड कोलीग्स होते हैं ना, तो उस बेस पे मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन फॉर स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू, द आंसर इज नो। अवेक इंटुबेशन, अवेक इंटुबेशन जो है ये उस सूरत में है, अगेन if we go academically, if patient is full stomach and having difficult airway, yes, you will answer awake intubation. Yes, I will do awake intubation. लेकिन ये awake intubation जो है ये हर जगह हर वक्त और हर कोई नहीं कर सकता होता। ये ना हर हॉस्पिटल में हो सकती होती है। इसके लिए ये है कि हॉस्पिटल इक्विप्ड होता है, मैन पावर ट्रेंड होती है, और उस हॉस्पिटल में जो है वो डेली जो है ना एक अवेक इंटुबेशंस हो रही होती हैं। जैसे एक कुलीग है, he never did awake intubation, or he did awake intubation 3 years ago while being trainee, and a injury comes and he thinks, oh, let's go with the awake intubation. He can't do it, वो उतना ही डैमेज कर देगा। तो इधर जो है awake intubation में just if academically जाते हुए, in exam, yes, you will say that awake intubation is an option. But if the airway is difficult and patient is full stomach, then you have to communicate with the surgeon that how urgent this operation is. Because most of the times they will examine and they will say, for example, they say, well, the eye is lost and we are just doing a cleaning operation basically. Then better you delay it for a few hours to make it safe rather than putting patient in danger. सो अवेक इंटुबेशन के लिए ये मेरी जो है ना वो टिप थी कि नॉट एवरीवन कैन डू इट, नाइदर इट कैन बी डन इन एवरी हॉस्पिटल,
बिकॉज इट नीड्स फैसिलिटीज, और ना ये हर वक्त हो सकती है कि फॉर एग्जांपल इन मिडल ऑफ द नाइट द adequately trained anesthetic personnel is not available. जी इसमें कुछ फर्दर कोई दोस्त ऐड करना चाहे तो। नहीं सर, आपने सही एक्सप्लेन कर लिया। मेरा भी एक ख्याल है कि इसमें बहुत ज़्यादा कफिंग के ज़्यादा चांस होते हैं, तो ये अगर की भी जाए तो एडिक्वेट सेडेशन के साथ करनी चाहिए। एब्सोल्युटली, एज आई टोल्ड यू, मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर देता हूँ। जैसे माशाल्लाह दुबई जो है बड़ा एडवांस माशाल्लाह हॉस्पिटल्स हैं उनके, तो उसमें जो अवेक इंटुबेशन थी, जो हमारा हॉस्पिटल था दुबई हॉस्पिटल, उसमें मैंने 5 साल काम किया है, मैंने कभी अवेक इंटुबेशन होते हुए नहीं देखी। ठीक है, क्योंकि जरूरत उसकी नहीं पड़ी थी। और दूसरी साइड पे एक हॉस्पिटल था हत्ता में। जो हत्ता है वो है उसका एक पेरिफेरल एरिया है दुबई का ना, तो वहाँ जितनी इंटुबेशन थी एज ए ट्रेनिंग एज ए रूटीन, वो अवेक इंटुबेशन करते होते थे जस्ट टू कीप देयर स्किल इंटैक्ट। और वो जो एनेस्थीसिया के 3-4 लोग थे, वो फिर ईयरली ट्रेनिंग्स करवाते रहते थे, जो दूसरे कोलीग्स हैं ना, वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग्स टू कीप देयर स्किल इंटैक्ट। दे टोल्ड वी डू एवरी इंटुबेशन एज अवेक इंटुबेशन। और उनका उसमें जैसे है ना हाथ खुला हुआ था, और यानी उन्हें सिडेशन का लेवल पता था। ये डेक्समेड से जो है वो सिडेट करके ब्लॉक्स जो प्रॉपर थे उनके दे के, तो वो तमाम इंटुबेशन ये कर लेते थे, अवेक इंटुबेशन करते थे। एंड इफ अगर उन्हें कोई ट्रेनिंग में जब वो वर्कशॉप्स कराते थे, तो उन्हें कहते थे ना कि जी आप हमें वो कहते हैं आप हत्ता आ जाएं काइंडली, हम आपको करा देंगे, क्योंकि हम डेली ये करते हैं। तो ये जो अवेक इंटुबेशन है अनस्किल्ड हैंड में फर्स्ट टाइम आप करने लगेंगे तो फायदे से ज्यादा आप नुकसान ही कर देंगे मेरे ख्याल में। एग्जैक्टली सर। सो वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगले जो भी क्वेश्चन हैं ये रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन के इर्द-गिर्द ही घूम रहे हैं। So is succinylcholine contraindicated in open globe injuries and how does it affect the intraocular pressure? Or does pre-treatment, जो इससे अगला क्वेश्चन है, does pre-treatment with non-depolarizing prevent succinyl induced increase in intraocular pressure? ये दो क्वेश्चन हम इकट्ठे डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे जो नंबर 5 है। जी एनीबॉडी जो इसको आंसर करना चाहे। आई विश के दूसरे कोलीग्स जो है ना इसे करें। जी सर, या स्पेशली वो लोग जिनका एग्जाम है। डॉक्टर आगा, आप चाहें तो आप आंसर कर सकते हैं। नो वन स्पीकिंग। जी डॉक्टर जहांगीर। अस्सलाम वालेकुम। Succinylcholine contraindicated in open globe injuries. Yes. अगर हमारे पास कोई अल्टरनेट नहीं है, अल्टरनेट है तो फिर तो कंट्राइंडिकेटेड है डेफिनेटली। इससे आईसीपी बढ़ेगा। जैसे रोकोरोनियम है, अगर रोकोरोनियम है तो उसका रिवर्सल भी होना चाहिए, तो सुगोमाडेक्स होना चाहिए। अगर वो ये चीजें अवेलेबल हैं तो फिर तो कंट्राइंडिकेटेड है। Otherwise, life is more important than ICP and eye injury. अच्छा, secondly ये है कि how does it affects IOP? जो सक्सिनाइल जो एक्स्ट्राकुलर मसल्स हैं, उसमें मिलर में बहुत अच्छी उसने लिखी हुई है कि जो एक्स्ट्राकुलर मसल्स हैं वो मल्टीपली इनर्वेटेड हैं, और जब भी कोई कंट्रैक्शन होगी एक्स्ट्राकुलर मसल्स की, सस्टेन्ड कंट्रैक्शन होगी और अप टू 2 मिनट्स वो कंट्रैक्शन सस्टेन्ड रहेगी, तो वो इतनी फोर्सफुल कंट्रैक्शन होगी कि जो ग्लोब के कंटेंट है वो एक्सपेल हो सकते हैं। तो इसलिए जो सक्सिनाइलकोलिन है तो आईसीपी बढ़ेगा, एक आईसीपी बढ़ेगा, दूसरा जो एक्स्ट्राकुलर मसल्स की वजह से सस्टेन्ड प्रेशर होगा, उससे ग्लोब के कंटेंट बाहर आ सकते हैं। तो ये मेरे माइंड में था, बाकी आप ऐड कर दें। गुड, अच्छा एक्सप्लेन किया डॉक्टर जहांगीर आपने। जी स्पीकर साहब,
जी सर, आप ऐड करें इसमें। वेल मैं पार्शली हाफ एग्री करता हूँ। दूसरा जो कंटेंट है क्वेश्चन का, हाउ डज इट अफेक्ट आईओपी, ये बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है। आई रियली लाइक इट, क्योंकि जो हाईली इनर्वेटेड मसल्स हैं, क्योंकि ये जैसे हैंड के मसल हैं, आई के मसल हैं, ये इनमें बहुत ज्यादा जो है ना प्रिसीजन चाहिए होती है, लिहाजा इनका जो इनर्वेशन है ये ज्यादा है, तो जाहिर है इनकी कॉन्ट्रैक्शन भी ज्यादा होगी। लेकिन is succinyl contraindicated in open globe injuries? So my answer would be, academic answer would be no, because इसमें नो आएगा एग्जैक्टली। ये जो हमारी डिस्कशन है ना, ये इसके दो पर्पस हैं। एक तो ये क्लियर एग्जाम ओरिएंटेड है कि एग्जाम में आपने क्या करना है, तो उसका जो आंसर एकेडमिक आंसर है, स्टैंडर्ड आंसर है, वो हमने कहना है। टू आंसर टू दिस क्वेश्चन academically is no, because life comes first. if patient is full stomach, अगर आप rapid sequence सक्सीनल से नहीं करेंगे, हो सकता है आपका एयरवे कंप्रोमाइज हो जाए, हो सकता है पेशेंट एस्पिरेट कर ले, लेकिन आई ऑलरेडी देखें जो परफोरेटेड ग्लोब है उसमें आई तकरीबन जा चुकी है। इन परफोरेटेड ग्लोब है उसमें आई स्टेक के ऊपर है, एंड प्लस माइनस ऑलरेडी जो है ना वो आई रिकवर करे फुली ना करे, उसकी विट्रेक्टमी होनी पड़े, यानी इट्स अ कम्प्लेक्स इंजरी, और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो जरूरी नहीं है कि उसकी जो आई का विजन है वो मेंटेन रहे। आई की इंजरी हो चुकी है, सो आई को बचाते बचाते हमने लाइफ को कभी कंप्रोमाइज नहीं करना। ये एक तो क्लैरिटी हो गई। दूसरा ये है कि एकेडमिक आंसर के बाद नेक्स्ट चीज आ जाती है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, यानी आपका से 10 इयर्स एक्सपीरियंस है, यू आर डूइंग इट डेली, आपको पता है कि एयरवे जो है इट लुक्स स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है एयरवे, और आप उसको मॉडिफाइड पे लेके चले जाते हैं रॉकिरोनियम पे, एंड यू गॉट सुगैमाडेक्स आल्सो, या देन ये है कि आप सक्सीनाइल को अवॉइड कर सकते हैं, बाईपास कर सकते हैं। लेकिन किसी भी स्टेज के ऊपर आप ये नहीं कर सकते कि जी वो जो सक्सीनाइल कुलीन है ये कंट्रा इंडिकेटेड है, ऐसा नहीं। होप इट मेक सेंस। जी सर आप एग्जैक्टली एग्री करते हैं जी? एग्री सर, मैं तो फिर भी एग्री करता हूँ। आप मैं Anybody आपको एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरे ख्याल 2 ही हफ्ते पहले की बात होगी, एक लेप्रोटमी थी जिसे मुझे करवाना था यहीं यूके में ही। तो पेशेंट जब मैंने देखा, और यानी एक अपेंडिक्स थी जरा परफोरेटेड, और उसकी एनजी डली हुई थी, और एनजी सक्शन वगैरह, जैसे एनजी में से कुछ आ भी नहीं रहा था। तो मैंने डिस्कस किया अपने कंसल्टेंट से कि भाई मेरा प्लान क्या है। मैंने उसे कहा कि जी मेरा प्लान है कि मैं जो है रॉकिरोनियम पे जाऊंगा, एंड हमारे यहाँ सुगैमाडेक्स भी पड़ा है, यानी वी गॉट। तो उसने एग्री नहीं किया मेरे से, उसने कहा नहीं, लुक एनजी इज देयर एंड वी डोंट नो how much is the content inside. I will go bookish, I will go standard, so better you go with succinil. That's it. If you go with succinil, you are not wrong, you are never wrong. That's एग्जैक्टली all. सही कहा था। Yeah. सही। सो एनीबॉडी, किसी और ने कोई इसमें ऐड करना हो? अदरवाइज विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डज प्री ट्रीटमेंट विद अ नॉन डिपोलराइजिंग प्रिवेंट द सक्सिनाइल इंड्यूस्ड इंट्राओकुलर प्रेशर? सर प्री-कुलराइजेशन से या जो नॉन डिपोलराइजिंग ड्रग देने से सक्सिनाइल से पहले सर उसके इसकी फेसिकुलेशंस तो हम खत्म कर सकते हैं, लेकिन इसका इंट्राओकुलर प्रेशर रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। और इंट्राओकुलर प्रेशर को हम इसलिए इतना कंसीडर नहीं कर रहे, जैसे डॉक्टर तनवीर ने बताया कि इंजरी तो आई इंजरी तो पहले ही हो चुकी है, लेकिन उसकी फेसिकुलेशंस और उसका जो फर्दर इफेक्ट्स हैं उससे हम अवॉइड कर सकेंगे।
जी सर, आपका एक्सपीरियंस इसमें? जी आप मुझसे मुखातिब हैं डॉक्टर साहब? जी सर, जी सर, जी सर। We are discussing, does the pre-treatment with non-depolarizing prevent succinyl induced increase in Yes. IOP, right? Yes sir. Yes Well, sir. I think यहाँ पे ये pre-curarization की बात हो रही है कि where we give a very small dose of 1/10 of the normal dose of like non-depolarizing, and then we give succinyl so that the fasciculations are not that strong or they may be prevented. Yes, जी सर। looks like that it should be helpful, but I think on reality it does not help, isn't it? जी सर, इसमें Or does जो it help? डाटा है, इसमें जो मुख्तलिफ क्वेश्चन जहाँ से मैंने, तो डाटा डज नॉट सजेस्ट एनी, जो रिसेंट जो डाटा है, जो भी रिसर्चेस हुई हैं, तो उसमें कोई इसकी इतनी वो फेवर नहीं की गई। Yeah, that's what I'm telling. Look, medicine is a strange thing. Sometimes when we know that this is the reason, we think reason is the fasciculation. Yes, it's believed to be. And when we do pre-curarization and that fasciculations are stopped, they are not happening. Technically, the IOP should not increase, but the actual data is suggesting that it's not helpful. That's why in medicine, 2 + 2 is never 4. एग्जैक्टली सर। Yeah. सो So yeah, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जी सर बिल्कुल आपने सही कह दिया। यहाँ पे हमने मजीद कोई इस पे कमेंट करना चाहता है तो yeah. otherwise our next question is, this is something a bit interesting. So how will you perform RSI without succinyl? इसमें आपने कुछ पहले ही डॉक्टर तनवीर ने बता दिया है, रोकोनियम वाला ऑप्शन। सो इसमें कुछ और कोई ऐड करना चाहे कि रोकोनियम के अलावा हमारे पास क्या ऑप्शन है? RSI without succinyl, anybody? जी डॉक्टर जहांगीर। शायद मैं मेरा तुक्का सही लग जाए। हाँ, मैं आईवी जो एनेस्थेटिक एजेंट है वो दे के ट्यूब डाल दें, लेकिन उससे एडिक्वेट रिलैक्सेशन होगी नहीं। और कोई ऑप्शन, और कोई चीज ध्यान में आती हो? बस मेरे ज़हन में यही था। सक्स है या रोक्रोनियम है, और तो कोई है। जी, जी anybody? anybody else? जी सर, मॉडिफाइड रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन कर सकते हैं। So what is modified rapid sequence? मॉडिफाइड रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन में ये सिस्टरक्यूरियम से या रोकोनियम से हम क्रिकॉट प्रेशर देके हम वेंटिलेट भी कर सकते हैं और विद इन 1 to 2 मिनट्स इंट्यूबेट कर सकते हैं विदाउट सक्सिनल कोलिन। जी सर, डॉक्टर तनवीर सर, इस पे आपके कमेंट्स? जी बिल्कुल, मैं जी एक्सप्लेन करता हूँ। जहाँ रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन आएगा जी सर, वहाँ सक्सिनेल ही है स्टैंडर्ड आंसर। सो हाउ और जो रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन है वो सिर्फ सक्सिनेल पे नहीं है, उससे पहले की उसकी बड़ी प्रिपरेशन है। ये हमें बताना है, यानी कि हमारे ज़हन में ये होता है कि बाकी जो चीज़ें हैं ये तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जहाँ भी रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन होगी तो मेरे जो कोलीग्स जो एग्जाम देने जाएंगे उनके लिए ज़रूरी है कि अगर वो कहेंगे ना जी हम सक्सिनेल देंगे या बस राकिरोनियम दे के तो हम इंटूबेट कर देंगे, तो ये 10 में से 2 जो है ना उन्होंने नंबर अचीव किए हैं या 3। तो रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन को शुरू से जब भी आएगा आरएसआई, यू हैव टू स्टार्ट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड प्रिपरेशन। पेशेंट को एक्सप्लेन करेंगे कि आपको हम मास्क देंगे, इस मास्क में आपने गहरे सांस लेने हैं, जस्ट ब्रीथ इन एंड आउट, दिस इज फ्रेश एयर फॉर यू, एंड उसकी थोड़ी सी टाइट सील रखनी है। और कुछ जो लोग हैं दे रिकमेंडेड टू डू इट फॉर 3 मिनट्स, ये उसे एक्सप्लेन करना है। देन यू टेल देम we will give you injection and slowly you will go to sleep, but same time you are going to sleep, you will be having a cricoid pressure. It will be feeling like you are getting suffocated, but please excuse me for that. I have to do it because I don't want your stomach content to come and go into your lungs. He will be understanding,
pre-oxygenate, cricoid pressure, maintain the cricoid pressure. If you got succinyl, well and good, but if you have not got, then it's modified rapid sequence induction. You will give a complete and bit higher dose of rocuronium. Maintain this pressure for 1 minute. With good pre-oxygenation, the saturation will not fall and you don't need to ventilate. But in case the ventilation is needed, then you adjust your APL to 20 centimeters, maintain that cricoid pressure, and with that, maintaining that pressure, you can gently ventilate it, but that is not required in 99% of the cases. And with adequate relaxation, then you intubate the patient. You intubate the patient, confirm end-tidal CO2, trace, inflate the cuff, and after cuff is inflated, then you tell your colleague to release the pressure. ये complete आप description देंगे तो आपने 10 out of 10 achieve किया है. अगर आप कहेंगे मैंने तो बताया है सक्सिनाइल और patient intubate मैंने कर दिया है, और तो ये क्या हुआ कि मुझे तो उन्होंने नंबर नहीं दिए, फेल कर दिया है, इसलिए कि रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन का सिर्फ आपने 25% उन्हें एक्सप्लेन किया है, बाकी एक्सप्लेन नहीं किया गया. सो एवरी टाइम RSI कम्स, आपने अगेन A से शुरू करना है और Z तक जाना है. जहां सक्सिनल आए वो सक्सिनल बता दें, जहां रॉकुरोनियम आप देना चाहें वहां रॉकुरोनियम बता दें. और मेरे हिसाब से इसके अलावा जो ये है सिस एट्राक्यूरियम या एट्राक्यूरियम का रैपिड सीक्वेंस या मॉडिफाइड में मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई रोल है. इन्हीं दो ड्रग्स का है. जी सर, मोस्टली रोक्रोनियम का है, वरना बुक्स में एक जगह लिखा हुआ है समटाइम्स के एट्राक्यूरम जब आप हाई डोज में देते हैं 1.5 mg पर केजी और 1 mg पर केजी, तो इट विल अलाउ द इंटुबेशन कंडीशंस इन 60 seconds, but at the risk of hypotension, histamine release and all that. एंड दूसरा ये भी है ना कि यू कांट रिवर्स इट. रॉकुरोनियम का तो ये है ना कि दुनिया में कम से कम आपके पास एक ड्रग है जिसे देने से आप इमीडिएटली, इफ यू फेल टू इंटुबेट and ventilate, you can save the patient. But in atracurium, you don't have anything that can reverse the patient. Exactly, sir. Exactly. Yeah. तो मेरा जो मैसेज है वो यही है कि RSI जब भी बोला जाएगा, एक तो है हम आपस में बात कर रहे हैं बीइंग कोलीग और कंसल्टेंट, आप फिर ठीक है आपने थोड़ी सी बात बता दी तो बात समझ आ गई, लेकिन बीइंग ट्रेनी जब आप एग्जाम में जाएंगे, अगर आपने A to Z सारा एक्सप्लेन नहीं किया तो आपका आंसर कंप्लीट नहीं होगा. प्लीज ऐसा ना हो कि बिल्कुल बिल्कुल आप इस चीज को जो है ना वो कम अटेम्प्ट करें और आप इसी इसमें एक अपनी जो अटेम्प्ट है वो जाय कराएं. RSI जब भी हो आपने कंप्लीट उसे बताना है बस. एग्जैक्टली सर ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया RSI को. RSI बहुत कॉमनली आस्क क्वेश्चन है आपके टेबल वाइवा में, लॉन्ग केस में कहीं ना कहीं ये पूछा जाता है मोस्टली. Yeah. So moving to the next question. Now during the procedure the patient heart rate drops to 40 per minute. So what is the diagnosis? Obviously आगे इसी के questions हैं. Oculocordic reflex. So इसका what is the pathway of OCR and how will you treat it? Anybody? I wish ये जो दूसरे मेरे कोलीग हैं और ट्रेनीज खास तौर पे आज ज्वाइन कर रहे हैं जिन्होंने एग्जाम देना है, तो मैं चाहता हूं कि वो बोलें. कोई हर्ज नहीं है, वो जी सर थोड़ा बोलें लेकिन बोलें. गलत ही बोल रहे हैं, बोलें बिल्कुल बोलें. जी डॉक्टर जहांगीर. जी डॉक्टर जहांगीर. अस्सलाम वालेकुम. अच्छा वालेकुम जी जी. जो ऑक्यूलोकार्डिक रिफ्लेक्स है ये जो हमारे एक्स्ट्राकुलर मसल्स हैं उन पे ट्रैक्शन पड़ेगी या कंप्रेशन होगी, उससे पेशेंट जाएगा ब्रेडिकार्डिया में, तो इसको कहते हैं ऑक्यूलोकार्डिक रिफ्लेक्स. अच्छा ये क्यों होता है और कैसे होता है? इसका जो पाथवे है, पाथवे कुछ ऐसे है कि जो सिलरी नर्व है, सिलरी नर्व से सिलरी गैंग्लिया, अच्छा सिलरी गैंग्लियान से ये फिर ऑप्टिक अपना ट्राइजेमिनल नर्व जो फिफ्थ क्रेनियल नर्व है, तो उससे फिर ये जाता है एक और कौन सी है, उससे जाएगा ट्राइजेमिनल के सेंसरी न्यूक्लियस में. जी एग्जैक्टली, ट्राइजेमिनल के सेंसरी न्यूक्लियस में. ठीक है, वहां से जो इफरेंट फाइबर्स हैं वो वागस नर्व
वागस से फिर ये अपना ब्रेडिकार्डिया वहां होगा। पे जो एफरेंट साइनेप्स करेगा विजुअल मोटर न्यूक्लियस ऑफ द वेगस के साथ, वागस जो कि मोटर न्यूक्लियस के एग्जैक्टली न्यूक्लियस के साथ, तो which is उससे located in फिर the क्या होगा, reticular formation, वहां से फिर वो वेगस नर्व आएगी। पैरासिम्पैथेटिक टोन इंक्रीज होगी और पेशेंट ब्रेडिकार्डिया में जाएगा। तो इसको मैं एक दफा फिर रिपीट कर देता हूँ। जो सीलरी नर्व है, सीलरी नर्व दो होती हैं, लॉन्ग और शॉर्ट, जो जाके आगे से सीलरी गैंग्लियन में वो ये ऑफरेंट पाथवे है। तो और ये वहां से वो ऑफ्थाल्मिक जो ब्रांच है क्रेनियल नर्व 5 की, वहां से फिर ये जाएगा सेंसरी न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। तो आगे वो सिनैप्स करेगा उसके साथ मोटर न्यूक्लियस ऑफ वेगस नर्व के साथ, और वैगल टोन इंक्रीज होगी, पैरासिम्पैथेटिक टोन या वैगल टोन इंक्रीज होगी और ब्रेडिकार्डिया होगा। तो इस पूरे जो रिफ्लेक्स है उसको कहते हैं ओकुलोकार्डिक रिफ्लेक्स। तो और इसका एक और नाम भी है ओकुलोकार्डिक रिफ्लेक्स के अलावा, इट इज आल्सो कॉल्ड द एशनर रिफ्लेक्स। जिसका नाम है, अच्छा एशनर रिफ्लेक्स जी, एशनर्स। नेक्स्ट है कि हाउ डू यू डायग्नोज एंड ट्रीट ओकुलोकार्डिक रिफ्लेक्स। तो डायग्नोज तो ये है कि पेशेंट सडन ब्रेडिकार्डिया में जाता है, तो हम दूसरा सर्जन ने भी अगर ट्रैक्शन दी हुई है, सर्जन ने प्रेस किया हुआ है, कंप्रेस किया हुआ है, तो उससे अंदाजा हो जाएगा ये ओकुलोकार्डिक रिफ्लेक्स हो रहा है। तो ट्रीटमेंट ये है कि सर्जन से कम्युनिकेट करेंगे, वो जो कंप्रेशन है या ट्रैक्शन है सबसे पहले वो हटानी है, और जो स्टिमुलस है स्टिमुलस को सबसे पहले हमने रिमूव करना है। दूसरा ये है कि हम अपना विगोलिटिक दे सकते हैं, एट्रोपिन या ग्लाइकोपेरोनियम हम दे सकते हैं पेशेंट को। जी जी जी। डॉक्टर तनवीर सर, इसमें आप ऐड करना चाहें कुछ? माशाल्लाह डॉक्टर साहब ने कुछ छोड़ा ही नहीं है कि ऐड किया जाए इसमें। थोड़ा जी सा सर। इसमें मेरी एक एडिशन है, जस्ट वेरी वेल ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड। ओकुलोकार्डिक सबसे पहले ये है कि आप क्विक रिफ्लेक्सेस हो, आपने फौरन सर्जन से, एक तो होता है फॉर्मल कि सर जी इसे प्लीज जरा आई से हटा लें, नहीं, क्लियर कम्युनिकेशन, प्लीज स्टॉप द सर्जरी, प्लीज ब्रेडिकार्डिया, प्लीज स्टॉप द सर्जरी, वो ये करेगा और होपफुली इट विल रिकवर। एंड देन इफ इट परसिस्ट देन गो विद द ग्लाइकोपायरोलेट। और ये इसकी भी एक इंडिकेशन है कि आपका जो डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया है वो लाइट है, तो इस पे भी थोड़ी सी नजरसानी कर लेनी है, आपने देख लेना है। अगर यू बिलीव कि डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया इज नॉट एडिक्वेट, you just increase the depth of anesthesia also. It's one of the signs also of the light anesthesia. जी एग्जैक्टली और ये मोस्ट कॉमनली स्ट्रैबिस्मस सर्जरी में ज्यादा कॉमन है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इज एट्रोपिन यूजफुल इन ओकुलोकार्डिक रिफ्लेक्स? Yes, sir. Atropine is useful in oculocardiac cardiac reflex. IV atropine, जी 10 डॉक्टर जहांगीर, आप कुछ micrograms कहना per चाहें? kg. जी डॉक्टर जहांगीर। बिल्कुल सर, जैसे डॉक्टर राफिया ने बताया बिल्कुल एट्रोपिन यूजफुल है, लेकिन जैसे सर तनवीर ने बताया कि सबसे पहले तो हमने स्टिमुलस जो है उसको हमने वो करना है, रोकना है, और दूसरा डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया को हमने इंश्योर करना है कि पेशेंट एडिक्वेट डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया हो, फिर हम एट्रोपिन या ग्लाइकोपेरोनियम कंसीडर करेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि एट्रोपिन या ग्लाइकोपेरोनियम वेगोलिटिक हैं, तो ये हम कंसीडर कर सकते हैं। Very good. और इसमें थोड़ा सा जस्ट लिटिल मोर एडिशन ये है कि ये जो रिफ्लेक्स है ना, ये डिमिनिश भी हो जाता है, कि यानी अगर रिपीटेडली ये हुआ है और 2-3 दफा सर्जन ने ट्रैक्शन दी है और इस रिफ्लेक्स को प्रैक्टिस किया गया है, यानी तो देन इट फेड्स अवे ऑन इट्स ओन आल्सो। बट टेक होम मैसेज ये है कि जो ब्रेडिकार्डिया सडन है ना, वो डेंजरस भी हो सकता है, एसिस्टली भी कर सकता है। किसी ने एक्सपीरियंस किया है बड़ा सडन सीवियर ब्रेडिकार्डिया आप में से कभी, ये इन्फ्लेशन में, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में या ऑफ्थेल्मिक में, कि कभी आप में से किसी को एक्सपीरियंस ये हुआ हो? यस सर, तो मल्टीपल टाइम। कितना ये डेंजरस हो जाता है और आप कितना इसमें
जो हैं एंक्शियस हो जाते हैं, कितनी ज्यादा जो है ना परेशानी हो जाती है थिएटर में एकदम। एग्जैक्टली सर, ऐसे ही है। एग्जैक्टली सर। बस इसी सर परेशानी से इसका बचना एक और सर एक और मैनूवर भी है। मैंने एक दो दफा ना सर्किट डिस्कनेक्ट कर दिया था, तो उससे भी कुछ बेहतर हो जाता है। वो ये है कि मेरे ख्याल में आपने वो जो एक्स्ट्रा जो प्रेशर है ना लंग्स पे, और जो आप वेगल स्टिमुलस हो रही है थोड़ी बहुत, जी आपने बेसिकली उस स्टिमुलस को हटा दिया है। जी एग्जैक्टली ऐसे ही है। और अगेन वही सर्जन के साथ कम्युनिकेशन है, जो इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर है वो हम मॉनिटर करेंगे, कंटिन्यूअसली कर रहे होते हैं, लेकिन उसको कम करना होता है। अगर बाय चांस बढ़ गया है 14-15 क्रॉस कर गया है, तो फिर हम उनसे कहेंगे कि प्रेशर कम करें। तो थोड़ा सा अब टॉपिक जो है ना थोड़ा सा फैल गया है, मेरा ख्याल है थोड़ा सा इसे मजीद बढ़ा लें जरा, इसी ब्रेडी का कर लें बात, क्योंकि देखें ऐसी जो चीज है ना हैपनिंग कभी कभी होती है, लेकिन ये बहुत सिचुएशन जो है ना थिएटर की उसको बड़ा टफ कर देती है। और इसमें अगर आप चंद सेकंड्स भी लेट हो गए हैं ना रेस्पॉन्ड करने में, तो इट्स रियली लिटरली आप जो है ना एसिस्टली तक पहुंच जाते हैं सिर्फ फ्यू सेकंड्स के लेट रिस्पॉन्स से। और अमूमन होता यह है कि अगर आप एक ही लेवल के हैं सर्जन और एनेस्थेटिस्ट, तो फिर तो ठीक है, आप कम्युनिकेट बहुत अच्छा कर लेते हैं कि आपकी दोस्ती है आपस में और आप कहते हैं प्लीज स्टॉप द सर्जरी। लेकिन if a trainee is doing, a junior anesthetist is doing on and the operator is very senior, तो उसमें क्या होता है कि एनेस्थेटिस्ट में ना वो जो जूनियर बंदा है उसमें वो कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो कहता है सर जी ऑपरेशन बंद कर दें, यानी कि वो इतनी धीमी सी आवाज में कहेगा। और इस चक्कर में कि वो सर्जन सीनियर है या कोई ऐसा इशू है, तो इसको मैं चाहता हूं कि ओवरकम किया जाए। whenever such circumstances happen, आपकी बहुत क्लियर लाउड एंड क्लियर कम्युनिकेशन हो, irrespective of the hierarchy, please stop the surgery, bradycardia, please stop the surgery, इमीडिएट आपका रेस्पॉन्स हो। उसमें कोई जूनियर सीनियर का रोल नहीं है, क्योंकि इसमें फ्यू सेकंड्स का डिले खुदा ना करे एसिस्टली तक आपको ला सकता है। और एसिस्टली हो गई तो आपको ऑन टेबल एनेस्थेटिक की मौजूदगी में सीपीआर, खुदा जाने पेशेंट उससे रिवाइव करे ना करे। तो ये टेक होम मैसेज है, इसका बड़ा केयर करनी है, बड़ा ख्याल रखना है इसका। एग्जैक्टली। सो इस पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। इज एट्रोपिन यूजफुल, ये बात डिस्कस हो गई। इसमें से कुछ जगह ये भी लिखा हुआ है, वो शुड इसको भी हमने ध्यान में रखना है कि अगर कार्डिक पेशेंट है तो उसमें एट्रोपिन आपका ब्रेड टैकीकार्डिया भी करेगा। सर क्वेश्चन जी जी, आप क्वेश्चन टाइप कर दें, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आप क्वेश्चन टाइप कर दें। सर रेट्रोबल्बर ब्लॉक जो है सर, जी जी, हेलो, उसमें ये कि सर रेट्रोबल्बर ब्लॉक इटसेल्फ समटाइम काजेज, तो उसको क्या सर अवॉइड करना चाहिए जब हम जीए दे रहे हैं, तो ब्लॉक की क्या होगी सर? हेलो, जी जी, आपका क्वेश्चन समझ आ गया। आपने ये कहना चाहिए रेट्रोबल्बर ब्लॉक इटसेल्फ समटाइम कॉजेज ओसीआर, ओकुलोकार्डिक रिफ्लेक्स, तो इसको क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन है आपका? जी सर, एग्जैक्टली। जी सर, डॉक्टर तनवीर, इस पे आप कुछ कमेंट करेंगे? बिल्कुल कमेंट करूंगा जी। देखें रेट्रोबल्बर ब्लॉक का जमाना चला गया है। इट्स अ डीप इंजेक्शन जस्ट बिहाइंड द रेट्रोबल्बर, बिहाइंड द आई। इससे ऑप्टिक नर्व डैमेज हो सकती है, इससे जो आर्टरी आ रही है रेटिनल वो डैमेज हो सकती है, रेट्रोबल्बर हीमाटोमा बन सकता है। सो इट्स अ डेंजरस प्रैक्टिस। इवन जो ऑफ्थेल्मिक सर्जरी के लिए शुरू में
रिट्रोबल्बर ब्लॉक यूज होता था वो खत्म हो गया. Nowadays they use peribulbar block or even topical. So सिर्फ OCR को प्रिवेंट करने के लिए जो रिट्रोबल्बर ब्लॉक है वो जस्टिफाई नहीं करता. जब आप इसे टैकल कर सकते हैं, आपको पता है कि ये सर्जिकल स्टिमुलस से हो रहा है, आपके पास ग्लाइकोपाइरोलेट ऑप्शन है, आपके पास डीपनिंग ऑफ एनेस्थीसिया का ऑप्शन है, आपकी ECG मॉनिटरिंग, आपकी विजिलेंट एनेस्थेटिस्ट मौजूद है, तो सब की मौजूदगी में रिट्रोबल्बर ब्लॉक का कोई रोल बनता नहीं है मेरी नजर में. जी सर, ठीक है सर. अच्छा, इस पे एट्रोपिन का एक जगह मैंने पढ़ा था कि थोड़ा कंट्रोवर्शियल रोल भी है. सम लिटरेचर आल्सो सेज कि आपको टोटल वेगल ब्लॉक को इंश्योर करने के लिए 2 to 3 मिलीग्राम एट्रोपिन चाहिए होती है समटाइम्स. और समटाइम्स कार्डियक पेशेंट आप करवा रहे हैं, आई का केस है, तो उसमें टैकीकार्डिया कैन बी डेट्रीमेंटल. इस पे सर कोई कमेंट करना चाहें आप? देखें, आप एट्रोपिन ना दें. ग्लाइकोपाइरोलेट जो है वो जो है मॉडरेट टैकीकार्डिया करता है, और वो जब आपने ट्रैक्शन हटवा दी है ना, पेशेंट ब्रैडीकार्डिया से वापस आएगा, लेकिन आप चाहते हैं कि इसको स्टेबलाइज कर लिया जाए, तो आप ग्लाइकोपाइरोलेट जो है वो थोड़ी डोज में दें. 200 माइक से कम 100-150 तक आप दें, तो क्या होगा कि जो टैकीकार्डिया एक्सट्रीम वो नहीं होगा, हार्ट रेट 70 और 80 तक पहुंच जाएगा. एंड वंस इट इज डन, दोबारा ट्रैक्शन से वापस वो ब्रेडी 40 पे आए, इसके चांसेस बहुत कम है. सो my suggestion would be you go with the glycopyrrolate with a lesser dose, just to take the heart rate to like 70-80 per minute. Then it should be fine. जी सर, ठीक हो गया. तो आखिरी क्वेश्चन है हमारे. एक तो इंट्रॉप आखिरी क्वेश्चन है, हाउ डू इंडक्शन स्ट्रेटजीज वेरी इन अ पीडियाट्रिक पेशेंट विदाउट एन आईवी लाइन. ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है कि बच्चा है छोटा, फुल स्टमक है, आई इंजरी है, आईवी लाइन भी नहीं लगी, बच्चा रो भी रहा है, इंट्राओकुलर प्रेशर रोने से भी बढ़ रहा है, तो हाउ विल यू प्रोसीड इन दैट केस इन फ्रंट ऑफ हिज और हर पेरेंट्स? ये कोलीग्स बोले, उसके बाद आखिर में मैं बताऊंगा. जी सर. जी डॉक्टर आफिया. सर इसमें हम डीप सिडेशन तो नहीं दे सकते. वैसे हमारे पास दो ही ऑप्शंस रह जाते हैं कि इसको इंट्रामस्कुलर कोई देंगे, सिडेशन देंगे ताकि आईवी लाइन लगा सके, या फिर रेक्टल सपोजिटरी देंगे. लेकिन इसमें यह है कि डीप सिडेशन भी नहीं दे सकते क्योंकि फुल स्टमक है और किसी भी वक्त एस्पिरेट भी कर सकता है. तो है तो इसमें केयरफुल है, लेकिन केयरफुल रहना पड़ेगा. लेकिन सिडेशन, रेक्टल सपोजिटरी या फिर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है, और कोई ऑप्शन नहीं है. आईवी लाइन लगाना जरूरी है रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन के लिए. तो सर मुझे तो जी सर, आप ऐड कर दो डॉक्टर तनवीर. जी डॉक्टर असलान, मुझे मुखातिब कर रहे हैं. जी सर, आप ऐड. ऐसा है कि पेनिट्रेटिंग आई इंजरी या फर्दर कोई भी सर्जरी है जो छोटे बच्चे हैं, सर व्हाट अबाउट गैसियस इंडक्शन? आवाजें आ रही हैं. जी सर, आप कंटिन्यू करें, मैं करता हूँ इसको. जी सर, इसका आंसर आ जाएगा इसमें. छोटे बच्चे जो है ना, वो जाहिर है रोएंगे, और सिचुएशन जो है ना चैलेंजिंग होती है. तो सबसे पहले है कम्युनिकेट करने की कोशिश करें बच्चे के साथ. एक है बहुत छोटा बच्चा, एक है लाइक 6-7-8 साल का बच्चा जो समझदार होता है. मिसाल के तौर पे उसके टॉयज हैं, टेडी बेयर है, टॉय है, कोई उसका टैब है जिससे वो खेलता है. पेरेंट्स में से जिसके साथ अटैच है, उसे कंसोल करने की कोशिश करें अच्छी कम्युनिकेशन से. जब ये रैपापोर्ट थोड़ी सी डेवलप हो जाए, तो फिर जो हम करते हैं यहाँ पे वो है एमला क्रीम जो है ना, वो अच्छी तरह देख के उसके हाथ पे जहाँ वेन हमें लगे कि ये विजिबल वेन है, वी पुट एमला क्रीम देयर एंड पुट ड्रेसिंग देयर. तो
रफली 15 to 20 मिनट में जो एमला क्रीम है ना उसका इफेक्ट जो है वो आ जाता है। और मीनवाइल बच्चा जैसे टैब से खेलने लग गया या कोई उसका खिलौना है, इस दौरान में कुछ नर्सें होती हैं, इधर तो होती हैं वो स्पेशलाइज्ड होती हैं, पीडियाट्रिक नर्सेज होती हैं, और बच्चे भी माशाल्लाह स्कूल गोइंग और क्रिएटिव थोड़े होते हैं। तो बच्चों के लिए ना एक यहाँ कोई चार्ट सा होता है, एक पेज का ना, बड़ा जैसे अखबार होता है, तो उसके ऊपर ना एक कार्टून होता है। तो वो कहते हैं कि इस कार्टून को तलाश करें, यानी कि वो बड़ा छुपा हुआ सा होता है। तो बच्चा उसको जब तलाश कर रहा होता है ना, तो वो उसकी आँखों और हाथ या पाँव जहाँ वेन में आईवी लगा रहे होते हैं, वो उसके दरमियान उस नर्स ने ब्लॉक किया हुआ होता है। यानी बच्चे के विजन में नहीं है कि आप उसको नीडल लगा रहे हैं, और आपने बच्चे को थोड़ा-सा बताना है कि आप ना वो कार्टून ढूँढो इसमें से ना। उसका नाम मैं भूल रहा हूँ कार्टून का, कि फाइंड द, वो एक कैरेक्टर है बेसिकली। So child start keep on searching him, and while he is searching you secure the line. So line secure हो जाती है और इस तरीके से आप प्रोसीड कर सकते हैं। This is one strategy जो कि मैंने देखी है। अदर यही है, जिस तरह ये है कि बच्चे को फिर प्री मेडिकेट करना होगा, से आईवी लाइन भी नहीं मिली और वो प्री मेडिकेशन इतनी हो कि जिसमें बच्चे का जो एयरवे है वो कहीं कंप्रोमाइज ना हो जाए। So you have to be very careful. That's how we can address it. But yes, this is a challenging situation. जी सर, एग्जैक्टली। और इसमें बाज़ दफ़ा इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन का भी रोल है, और इनहेलेशनल का ये है कि इनहेलेशनल आई इंजरी है, तो इसमें मजीद आप इतना प्रेशर नहीं दे सकते, उसके लिए वेंटिलेट करना पड़ेगा आपको। तो वाकई ये थोड़ा Hopefully, ट्रिकी सिचुएशन। hopefully the AMLA cream it does the trick. A 6, 7, 8-year-old child, उसकी dorsum of hand पे आपको वेन नजर आ रही होती हैं, but you can't get them कि child जो है वो cooperative नहीं है. If you put AMLA cream nicely there, give 15-20 minutes, and a good cooperative nurse is there who knows how to engage children. तो हम ये करते हैं यहाँ पीडियाट्रिक सर्जरी में, तो हो जाता है अक्सर वो उस कार्टून को देखते रहते हैं बच्चे, और उस दौरान में उनकी लाइन भी लग जाती है। तो इसमें काफ़ी सक्सेस है, और इसमें आप फर्दर जो है प्री मेडिकेशन जो है वो इंड्यूस कर दें, जिसमें ये है कि बच्चा कोऑपरेटिव हो जाए लेकिन डीप ना रहे। एंड इन केस इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट आईवी लाइन, देन ऑफ कोर्स आपको फर्दर जो इसके बाद हैं स्टेप्स, उन पे जाना पड़ेगा। लेकिन 90-95% of the time you will be successful with these strategies. सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम एमला ही वो करेंगे ना इसमें, कि एमला लगा के उसके बाद आईवी लाइन सिक्योर कर लें, उसके बाद इंजेक्शन करें। क्योंकि Exactly. Look, हमारे जो सर्कमस्टांसेस हैं, एक तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास एमला भी अवेलेबल नहीं है, और एग्जैक्टली एग्जाम में ये एग्जामिनर कहता है आपके पास एमला क्रीम नहीं है, तो आप क्या करोगे? वो फिर एग्जैक्टली कहें, फिर सही इसका जवाब है अस्पताल को बंद कर दें और उस पे ताले लगाएं, बात खत्म। मतलब है एक आप कार की दूसरा वर्कशॉप में सर जाते हैं, बाकी उसके पास हमारे, नट पाना ही नहीं है, तो देखें। और दूसरे सर हमारे जो हॉस्पिटल, हमारे जो बच्चे हैं, बच्चे भी इतना एजुकेटेड नहीं होते। बच्चे को अगर हम अपने सर्कमस्टांसेस में ये कह सकते हैं कि जी डॉक्टर साहब, आप कंटिन्यू करें थोड़ा, मैं फिर बताऊंगा। कौवा देखो, चिड़िया देखो, ये चीजें मतलब असल में बच्चे के साथ कम्युनिकेट करना है, जरूरी नहीं है बच्चा अंग्रेजी बोले तो ही आप कम्युनिकेट करें। जो गांव से बच्चा आया हुआ है, वो उसकी कोई लोकल लैंग्वेज है, उसकी नेटिव कोई उसकी चीजें हैं, उनसे वो खेलता है, उसके माँ बाप हैं, उसकी फैमिली मेंबर्स हैं, उनके साथ जब आप डीपली इंगेज करते हैं तो कोई ना कोई सोल्यूशन मिल ही जाता है। बेशक बच्चा सही लक्कड़ टायर से ही खेलता हो, लेकिन किसी ना किसी चीज से वो होगा कंट्रोल। वो मतलब ये है कि बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करना है किसी न किसी तरीके। Yeah, communicate with child, engage with the parents, give him some consoling items or play or टैब। जैसे आजकल देखें गांव का भी बच्चा है, वो मोबाइल से खेलता है, तस्वीरें बनाता है, तस्वीरें देख रहा होता है, उसे तस्वीरें दिखाएं। मीनवाइल उसे सिर्फ यही कहेंगे हम सुई नहीं लगा रहे, ये देखो हम क्रीम लगा रहे हैं यहाँ, ये देखो आप। थैंक बच्चे यू को सो ये मच। नीडल फोबिया होता है, आप उसे क्रीम जब लगा के चले जाते हैं और
15-20 मिनट उसे देते हैं। फिर ये है कि एक नर्स है जिसने यार वर्कशॉप कर रखी है बच्चों को एंगेज करने की, वो यानी वो उसकी जॉब ही यही है कि वो बच्चों को जो है ना एंगेज कर ले। तो वो ट्रेंड बंदा होता है, और दूसरा आपके पास वो चार्ट होता है कार्टून ढूंढने वाला। तो बस फाइंड द मंकी या फाइंड द बस बियर या जो भी है, इस दौरान में यू सिक्योर द आईवी लाइन। अगर अगर आप यही आंसर दे देते हैं, इट शुड बी एनफ आई थिंक। जी डॉक्टर So, अरसलान। जी सर, कंक्लूड करते हैं अब इसको। आखिरी 2 क्वेश्चंस हैं। एक्सटुबेशन, जो थोड़ी ट्रिकी हो सकती है। एक्सटुबेशन, अच्छा चलें बोलें फिर इसको करते हैं हल एक्सटुबेशन का। जी डॉक्टर जहांगीर, इस पे आप कुछ डॉक्टर आमिर साहब कंटिन्यू कर लेंगे इसको बाद में? मैंने जी अरसलान भाई। जी सर, कंक्लूड आप कर लें सर। एक्चुअली मैंने थोड़ा हाँ उस बिजी होने बस लगा मैं हूँ। आपकी थोड़ी बहुत ही सुन सका हूँ। मैं भी एक केस में गई था, तो बाकी चीजें ठीक तो है सर। हो गई हैं। एक्सटुबेशन पे तो डॉक्टर बस लास्ट, जी सर, लास्ट क्वेश्चन है एक्सटुबेशन। अच्छा जी चलें, सर, अगर मुनासिब समझे मैं जल्दी से बता दूं, मेरा ख्याल है सारे लोग जरा एंगेज हैं। जी सर, बस लास्ट, जी सर, आखिरी दोनों क्वेश्चन कंक्लूड कर दें सर। अच्छा देखें जी, एक्सटुबेशन जो है ना, अब टाइम आया है एनजी पास करने का। जब पेशेंट एनेस्थेटाइज्ड है, सारा कुछ चल रहा है, आप एनजी पास करें, फुल स्टोमिक जो है उसका ड्रेन आउट करें, एम्प्टी करें, तो आपका जो रिस्क ऑफ एस्पिरेशन है वो कम हो गया है। और इस पेशेंट को आप ट्राई करें कि डीप तरह एक्सटुबेट करें। अ, अ, मतलब ये है कि इतना डीप भी ना हो कि एयरवे रिफ्लेक्सेस ये हो, और इतना लाइट भी ना हो कि वो जो है कफ कर रहा हो। तो आपने उसे ठीक प्लेन ऑफ एनेस्थेटिक में जो है ना ये करना है, एक्सटुबेट करना है। और एनजी प्रायर टू एक्सटुबेशन, एनजी आपने डाल के उसके जो कंटेंट्स हैं स्टमक के उनको इवैक्यूएट कर लें। सो एक्सटुबेशन का ये हो गया। एंड अ मंथ आफ्टर सर्जिकल रिपेयर, पेशेंट कंप्लेंट ऑफ impaired vision. He was examined and found to have retinal detachment. As a part of surgical treatment, a gas bubble was injected to posterior chamber. Why this is important? वो जो गैस बबल है वो अगर आप नाइट्रस यूज कर रहे हैं तो वो एक्सपैंड होगा, तो उसकी वजह से इंट्राओकुलर प्रेशर रेज होगा और उसकी वजह से आई के ऊपर डेट्रीमेंटल इफेक्ट आएंगे। सो एनेस्थेटिक को तो जो बबल है वो नाइट्रस की जो है ना पर्सपेक्टिव से ध्यान देना है, और कोशिश करें कि आप नाइट्रस ऑक्साइड ना यूज करें ऑल टुगेदर ही। सो मेरी नज़र में इनके 2 क्वेश्चंस हैं, आंसर्स हैं। रेस्ट अगर कोई ऐड करना चाहे तो बिस्मिल्लाह। नहीं सर, बिल्कुल एग्जैक्टली यही आंसर है। आपने सही बताया, क्योंकि सर्जरी के दौरान सर्जन के साथ क्लोज कम्युनिकेशन होनी चाहिए। अगर वो सर्जिकल ट्रीटमेंट के तौर पे कोई गैस इंजेक्ट कर रहा है पोस्टीरियर चैम्बर में, तो वो हमें बताएगा। हम उसको अगर नाइट्रस पे चला रहे हैं पेशेंट को, नाइट्रस और ऑक्सीजन के साथ, तो हम उसे रोकेंगे सर्जन को कि भाई रुक जाओ, पहले हमें एयर पे कन्वर्ट करने दो, शिफ्ट करने दो, तो डी नाइट्रोजनेशन करने दो, उसके बाद इंजेक्ट करना, ताकि जो रेटिनल डिटैचमेंट या इस तरह की कॉम्प्लिकेशन ना हो। एब्सोल्युटली, लेकिन बेहतर यह है कि जो आई सर्जरी है, जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है, जो यानी कि क्लोज कैविटीज की सर्जरी है, उनमें नाइट्रस ऑल टुगेदर यूज ही ना करें। तो एग्जैक्टली। ये भी अगेन एक सिलसिला है, क्योंकि थ्योरेटिकली और एकेडमिकली तो ठीक है जी नाइट्रस यूज ना करें, लेकिन हमारे यहाँ जहाँ नाइट्रस यूज नहीं होता वहाँ बड़े स्ट्रॉन्ग जो है ना एनाल्जेसिक, नारकोटिक और ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं। अगर आपने नाइट्रस भी यूज़ नहीं की और आप उसी जो है ट्रेमाडोल पे ही चल रहे हैं या नैल्ब्यूफिन पे चल रहे हैं, फिर एनेस्थीसिया बैलेंस रखना मुश्किल हो जाता है। जहाँ एयर यूज़ होती है वहाँ फेंटानिल है, वहाँ मॉर्फिन है, वहाँ रेमीफेंटानिल इन्फ्यूजन चल रहे होते हैं। अ, इसलिए टेक्निकली ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाता है वाक़ई कि आप उसको एयर पे के ऊपर कराएँ, क्योंकि आपके पास एनाल्जेसिया भी इतना नहीं होता। बट या एकेडमिकली बस आपने जब एग्ज़ाम देना है तो आपने यही बताना है कि नाइट्रस ऑक्साइड हमने अवॉइड करना है, और उसे ये ना कहें कि मुझे पहले बताएँ मैं डी नाइट्रोजीन कर लूँ।
वो कहेगा नहीं यार वो तो डीनाइट्रोडेशन करते करते वो तो बड़ा 15-20 मिनट लगते हैं। तो just tell him, well, we will not use nitrous oxide altogether. That's all. जी सर, आई थिंक बहुत अच्छी डिस्कशन हुई। थैंक यू डॉक्टर तनवीर, आपने तमाम क्वेश्चंस को बहुत ही डिटेल से सबको एक्सप्लेन किया। थैंक यू वेरी मच सर। और Exactly. And this question is a last week question. बड़ी जी Very सर, बड़ी important question है। जी सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें तमाम चीजें आज ट्राइड के मैंने इस सिनेरियो में हर चीज कवर कर ली है, कोई चीजें मिस हो गई होगी वो फिर हाँ नहीं स्टूडेंट्स। खबर हो गई। ठीक है सर, डॉक्टर आमिर। हाँ जी, थैंक यू थैंक यू। यहीं पे मैं खत्म करते हैं, काफी डिटेल 23 डिस्कशन, मिनट टाइम भी कम ओवर हो जी गए। सर। जी सर, हाँ जी, कोई क्वेश्चन होगा तो ग्रुप में कर लिए, उस पे फिर आंसर कर देंगे। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, गुड नाइट।